Right, welcome everyone. So in today's video, we are going to discuss about a very important topic related to English language and English communication. So today's session is going to be very interesting because we are going to discuss something very interesting and people think that it is very difficult. It is not difficult, it is very simple and it's gonna be very useful for the aspirants who are preparing for TET, TRT and other competitive exams. So it is also very important for intermediate first year students who are enjoying their Dasara holidays. So आज के सेशन में जो है हम लोग फोनेटिक्स के ताल्लुक से डिस्कस करने वाले हैं. सो फोनेटिक्स जो है इट इज ए साइंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द साउंड्स, how the sounds are produced, how we produce and pronounce the sounds. This is what we study in phonetics. So phonetics is a science which deals with what? Which deals with the production of the sounds, production of the speech sounds. So this is what we are going to discuss. So ये phonetics जो है एक साइंस है जैसे कि अदर साइंसेस है. किसके ताल्लुक से स्टडी करती? प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच साउंड्स. हमारे जो स्पीच के ऑर्गन्स रहते उसके जरिए से जो साउंड्स प्रोड्यूस होते वो स्टडी करने वाली साइंस को क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं. सो ये फोनेटिक्स पढ़ने की, फोनेटिक्स को स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई वी स्टडी फोनेटिक्स? So this is what we are going to discuss, and along with that what kind of questions will be asked and they are asking in competitive exams. This is what we are going to discuss. So आज के सेशन में जो है फोनेटिक्स जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते, chaos में रहते, they feel that it is difficult. This is what we are going to discuss to avoid their difficulty. So आज के सेशन में हम लोग बहुत सिंपल वे में फोनेटिक्स के ताल्लुक से डिस्कस करने वाले हैं जो कि 1 से 2 क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि टीआरटी है, टेट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो स्पेशली इंटरमीडिएट की और डिग्री के, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स को, एमबीए के स्टूडेंट्स को भी उनको AELCS लैब बोलकर रहती है, एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स लैब, वो लैब के ताल्लुक से भी हम लोग बात करेंगे. सो इट विल बी यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो आज के सेशन में हम लोग फोनेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं. फोनेटिक्स सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? Why we are learning phonetics? This is what we are going to discuss. So normally guys, we have 26 letters in English. How many letters do we have? 26 letters. So English में कितने letters है? 26 letters है. और sounds कितने हैं? 44 sounds है. How many sounds we have? 44 sounds we have. So we have more sounds and less letters. If it compare with other language, so it is different. ये जो है इंग्लिश अदर लैंग्वेजेस से कंपेयर करें तो डिफरेंट है. जैसे कि आप उर्दू ले लीजिए. उर्दू में सा जो है सा ही साउंड प्रोड्यूस करता, का साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, डा साउंड प्रोड्यूस नहीं करता. ये जो सीन है सा ही प्रोड्यूस करता. अब तेलुगु का चा ले लिए तो चा साउंड ही प्रोड्यूस करेगा, दूसरा साउंड प्रोड्यूस नहीं करता. But it doesn't happen in English. This is what you need to understand. For example, if you take letter CH, CH जो है इसको ऐसा लिखेंगे तो ये चा हो गया. क्या हो गया? चांस. यही CH को आप कैरेक्टर में ले लिए तो ये जो है का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. Yes or no? So here this particular CH is producing cha sound here and this particular CH is producing ka sound here. That's why it is different language comparing with other languages. If you have a look here, the scene produce sa sound, the cha produce cha sound, in Hindi ka produce ka sound. But here the same CH is producing different kind of sounds. So it is very difficult for a learner to find out the proper pronunciation of the word. So यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? So यहाँ पे एक लर्नर जो इंग्लिश का लर्नर है ये CH को चा प्रोड्यूस करना या का प्रोड्यूस करना इसमें डिफिकल्टी, दिक्कत महसूस करता. सो इसके लिए ही हम फोनेटिक्स नाम के एक साइंस को सीख रहे हैं.
सो यहाँ पे क्या है, और सैशे लीजिए, जैसे सैशे है, सैशे, CH, सैशे, क्लिनिक प्लस सैशे जो छोटे पैक में आता है उसको सैशे बोलते हैं, छोटे पैक को। यहाँ पे जो है शाह प्रोड्यूस कर रहा, शाह साउंड है, देखिए ये सेम CH यहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड में अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहा। सो एज आई हैव टोल्ड यू, हर लर्नर जो है दिक्कत महसूस करता, डिफिकल्टी महसूस करता व्हेन ही इज लर्निंग इंग्लिश। एंड इवन इन इंग्लिश वी हैव साइलेंट लेटर्स, साइलेंट लेटर्स। अगर से मैं एक नया वर्ड लिखा, नया वर्ड, कौन सा नया वर्ड, जैसे कि डेब्री है, ठीक है, DEBRIS, डेब्री, इसमें S साइलेंट है। अगर से कोई नया स्टूडेंट रहा, नया लर्नर रहा, इसको प्रोड्यूस करो साउंड इसका, ओके, फलाना वर्ड पढ़ो बोले तो हाउ विल ही प्रोनाउंस द वर्ड, डेब्रीज बोलता, यहाँ पे S साइलेंट है, डेब्री बोलना चाहिए एक्चुअली, पर डेब्रीज बोलता, क्यों बोले तो लास्ट में S आ रहा। तो यहाँ पे इंग्लिश में जब एक लर्नर लर्निंग करते रहता, ही विल फाइंड डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग अ वर्ड प्रॉपरली, प्रोनाउंसिंग अ वर्ड प्रॉपरली। सो ये डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन को प्रॉपरली सीखने के लिए जो साइंस है उसको फोनेटिक्स बोलते हैं। सो ये जो लेटर्स कम हो गए और साउंड ज्यादा हो गए, ये परेशानी को दूर करने के लिए ही एक साइंस बनाई गई है, वो फोनेटिक्स है, एक सिंपल लैंग्वेज में। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट वेरी टिपिकल और डिफिकल्ट। आज के सेशन में आपको फोनेटिक्स पूरा डिफिकल्ट करके बड़े 10-12 घंटे के सेशन में नहीं पढ़ाने वाला हूं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली वॉवेल साउंड्स। नॉर्मली वी हैव टू टाइप्स ऑफ साउंड्स, वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब यहाँ पे देखिए, आप बहुत सारे लोगों को मालूम है 26 लेटर्स में 5 जो है वॉवेल साउंड से और बाकी के 21 जो है कॉन्सोनेंट साउंड से। सो देयर आर 5 वॉवेल साउंड्स A-E-I-O-U एंड रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो वैसे ही ये लेटर्स को इस तरीके से डिवाइड करें तो यहाँ पे साउंड्स को भी 2 टाइप्स डिवाइड करें, साउंड्स को 2 टाइप्स डिवाइड करें। क्या करें, वॉवेल सेम कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड से। सो इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड्स है ना, सो ये वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है कितने हैं इन इंग्लिश, देयर आर 20 वॉवेल साउंड। हाउ मेनी वॉवेल साउंड्स आर देयर, 20 वॉवेल साउंड, एंड देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड। यहां पे साउंड्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, साउंड्स के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, लेटर्स के ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो 5 वॉवेल लेटर से A-E-I-O-U और 21 कॉन्सोनेंट लेटर से, वहां पे लेटर से 26, यहाँ पे साउंड से कितने साउंड से बोले 44, 20 वॉवेल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। सो ये साउंड्स क्या है, ये साउंड्स को कैसा सीखना। सो यहाँ पे इससे पहले जो है डेब्री नाम का जो वर्ड, डेब्री नाम का जो वर्ड, डेब्री जो प्रोनाउंस कर रहा वो वर्ड हम सीखे थे, इसको डेब्री बोलकर हाउ वी नो, कैसे, ऐसे हम क्या करें, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लर्नर्स डिक्शनरी में रेफर किए। तो जब ये वर्टिकल बॉक्स में जो सिंबल्स लिखे हुए डेब्री, so I have come to know that this is debris only, not debris, because S is not added here. तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए डिक्शनरी में, ऐसे आपको मालूम है एक वर्टिकल बॉक्स में वर्ड को दिया जाता है, वो वर्ड के जरिए, वो सिंबल्स को समझने के जरिए हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन सीखते। सो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में सीखने के लिए किसकी जरूरत है, फोनेटिक्स की जरूरत है, फोनेटिक्स के सिंबल्स की जरूरत है। ये सिंबल्स पूरे सीख लिए तो वी कैन लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इजीली। सो यहाँ पे फोनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, वी हैव गॉन थ्रू, वी हैव लर्न दैट व्हाट इज फोनेटिक्स and how many sounds are there in English. How many sounds are there, 44 sounds. How many letters are there, 26. How many vowel sounds are there, 20 vowel sounds. How many consonant sounds are there, 24 consonant sounds. ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए। Okay, they have asked this kind of questions in competitive exams in TET. How many vowel sounds are there, how many pure vowels are there, how many diphthongs are there, how many voiced consonants are there, how many voiceless consonants are there. Okay, ये चीजों को हम लोग आगे सीखने वाले हैं. So in this session we are going to learn how many
vowel sounds are there. So यहाँ पे आपको clearly, I hope you got an idea that what is phonetics, what is the use of phonetics. In phonetics, we study the production of speech sounds through the symbols. थ्रू द सिंबल्स, क्योंकि इंग्लिश में लेटर्स कम है और साउंड्स ज्यादा है, और लेटर डजंट रिप्रेजेंट द साउंड. लेटर जो है साउंड का प्रोडक्शन सेम नहीं करता. जैसे कि उर्दू में सा ही प्रोड्यूस करता, इंग्लिश में सा प्रोड्यूस नहीं करता. जैसे कि सेल है CELL, सेल में जो सी है वो सा प्रोड्यूस कर रहा, CALL काल जो है काल में का प्रोड्यूस कर रहा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. इससे पहले हम चांस में सीखे ना, ये सेल है ये काल है, ये सी सेम लेटर है बट साउंड जो है डिफरेंट है. यहाँ पे सेल में सा प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे का प्रोड्यूस कर रहा. यस और नो? सो यहाँ पे साउंड्स को सीखने में कंफ्यूजन रहता. दैट्स व्हाई वी लर्न थ्रू फोनेटिक सिंबल्स. So we have 44 symbols, 44 sounds in English, 20 vowel sounds, 24 consonant sounds. So today we are going to learn what? We are going to learn vowel sounds. Vowel sounds. How many vowel sounds are there? There are 20 vowel sounds. Vowel sounds कितने हैं? 20 है. Letters कितने हैं? 5 है. So we have 5 letters and 20 vowel sounds. So there are 20 vowel sounds. और consonant sounds भी हमारे next session में डिस्कस करेंगे. क्यों बोले तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाता. So लेंथी हुआ तो आप लोग भी बोर फील करते हैं. In simple way, in 15 to 20 minutes of video in this session we are going to discuss what? Vowel sounds. उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे, और उसके बाद इंटोनेशन बोले तो क्या, सिलेबल बोले तो क्या, स्ट्रेस का मतलब क्या है. ओके, ये सब चीजें सीखेंगे. तो नॉर्मली टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच के ताल्लुक से, स्ट्रेस के ताल्लुक से, इंटोनेशन के ताल्लुक से और सिलेबस के ताल्लुक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो स्पेशली टीआरटी एस्पिरेंट्स को टीआरटी पोस्टपोन हुआ. ओके, वी आर गोइंग टू गेट मोर टाइम नाउ एंड दे मे इंक्रीज द नंबर ऑफ द पोस्ट. क्या करते वो लोग, पोस्ट भी बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन के बाद. एंड वी आर गोइंग टू गेट मोर टाइम. So that's why we have enough time for preparation. So you have to go through each and every point very carefully and have analysis over everything. So यहाँ पे vowel sounds जो है 20 है, वो 20 vowels को monophthongs and diphthongs में divide किया गया. So how many vowel sounds are there? 20 vowel sounds. And vowel sounds are divided into two types, monophthongs, diphthongs. Monophthongs को प्योर वॉवेल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्योर वॉवेल्स. प्योर वॉवेल्स बोलते हैं इसको. प्योर वॉवेल बोले तो, मोनोथॉन्ग बोले तो एक ही है. ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, मोनोथॉन्ग्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्योर वॉवेल्स. मोनो बोले तो सिंगल, डाई बोले तो दो. ये भी समझना आप लोग, ये मैथ स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आता. मोनो मीन्स मोनोथिज्म, सिंगल गॉड, सिंगल. डाई मीन्स टू. सो यहाँ पे मोनोथॉन्ग्स रहते हैं, डिप्थॉन्ग्स रहते. सो मोनोथॉन्ग का मतलब क्या है बोले तो, मोनोथॉन्ग जो मोनोथॉन्ग्स है, मोनोथॉन्ग मींस यूनिट ऑफ ए सिंगल वॉवेल साउंड. सिंगल वॉवेल साउंड को क्या बोलते हैं? मोनोथॉन्ग बोलते हैं. जैसे ई, उ, ए, आ, ये जो है सिंगल वॉवेल साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोनोथॉन्ग बोलते हैं उसको. जैसे एक ही वॉवेल साउंड है, दो वॉवेल साउंड जिसमें रहते उसको डिप्थॉन्ग बोलते हैं. दो वॉवेल साउंड क्या है? ई, आ, या, उ, आ, उआ. इसमें उ आ रहा, आ रहा. औ है, आ, उ, औ. जो दो वॉवेल्स का, जो दो मोनोथॉन्ग्स का कॉम्बिनेशन रहता उसको डिप्थॉन्ग बोलते हैं. मोनोथॉन्ग बोले तो यूनिट ऑफ ए सिंगल वॉवेल साउंड. यहां पे देखिए सिंगल वॉवेल साउंड ई, आ, उ. combination of two monophthongs or two pure vowels is diphthong. इसमें दो सिंगल वॉवेल साउंड्स रहते हैं उसको डिप्थॉन्ग बोलते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे मोनोथॉन्ग्स है, डिप्थॉन्ग. सो यहाँ पे मोनोथॉन्ग डिप्थॉन्ग में भी वेरिएशन है. सो वी हैव 12 monophthongs. How many monophthongs are there? 12 monophthongs and 8 diphthongs. It means 12 plus 8, 20 vowel sounds. 20 vowel sounds. So vowels में
टू टाइप्स है मोनोथांग्स एंड डिफ्थांग्स. 8 plus 12 equal to 20. So यहाँ पे आज के सेशन में हम we are going to learn only vowel sounds and in tomorrow's session we are going to discuss consonant sounds which are 24. उसमें voice रहते, voiceless रहते, manner of articulation, place of articulation. Okay, we are going to learn that in tomorrow's session. So यहाँ पे monothongs में क्या क्या है देखिए, ये e है जैसे bead, okay, bead, feet. इसमें जो डबल ई आता उसको क्या बोलते हैं, मोनोथांग बोलते हैं. ओके, जो सिंगल वॉवेल साउंड रहता है. तो ये लॉन्ग है. आई के बाजू में जो दो डॉट्स डालते हैं उसको जो आप, आई होप यू अंडरस्टैंड तेलुगु, इसको ई, ये लॉन्ग है. क्या है ये लॉन्ग है. ये क्या है, ये शॉर्ट है ई. ये क्या है, बिट, सिट, फिट. इसमें ये यूज किया जाता है. जैसे बीड है, बीड को कैसा लिखते हैं अपन फोनेटिक सिंबल में, आई डाल के, दो डॉट डाल के ऐसा लिखते हैं. सो ये फोनेटिक सिंबल है. इसके जरिए से हम समझ पा रहे हैं कि इसको बीड बोलना, बेड नहीं बोलना, इसको बीड नहीं बोलना बोलकर समझ रहे. राइट, गॉट इट. सो हियर आई डालकर टू डॉट्स डाले तो क्या होता, लॉन्ग ई होता, और डॉट्स नहीं रहे तो शॉर्ट ई रहता, जैसे कि बिड. ये दोनों में फर्क है देखिए. So there is a difference between two things. यहाँ पे टू डॉट्स आए तो लॉन्ग हो जा रहा, ये शॉर्ट हो जा रहा. अब जैसे बेड है, बेड में क्या है, ए आ रहा. क्या आ रहा, ए. तेलुगु क्या आ रहा, ए. जैसे कि हिंदी में ए आता, हिंदी का यहाँ पे ई आता, और यहाँ पे क्या है, ई आता. क्या आता, ई. सो ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये ए है. जैसे बेड. इसको कैसा लिखेंगे फोनेटिक्स में, बी ई डी, सेम, बेड. अरे ये क्या है, आ. नेक्स्ट क्या है, बैड. इसमें आ या मिल के आता. स्प्रेडिंग ऑफ द लिप्स, लिप स्प्रेड होते हैं प्रोड्यूस करते हुए. ये जो वॉवेल है, ये वॉवेल दो उल्टे ई का कॉम्बिनेशन है जिसको अटैच कर देते हैं हम. इसको क्या बोलते हैं, आ. क्या बोलते हैं, आ. बैड, स्प्रेडिंग ऑफ द लिप्स. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ में या मिल के आ रहा. आ में जो है, इफ यू अंडरस्टैंड तेलुगु यू विल कम टू नो, आ में या मिलकर आ रहा. जैसे कि बैड, ऐसा बैड है देखिए, ऐसा लिखते. सो इसके जरिए से इसको बैड नहीं बोलना, बैड बोलना बोलकर वी आर कमिंग टू नो थ्रू द फोनेटिक सिंबल. इसको बैड नहीं बोलना, बैड बोलना. राइट. और नेक्स्ट क्या है, खाट. ये क्या है, खाट. ये क्या है, खाट. ये ए रहकर टू डॉट्स आया तो इसमें आर जो है हिडन रहता, आर. और इसको आ जो है, ये आर टू डॉट्स, ये टू डॉट्स जो है खाट, राउंडेड है, खाट. अब ये क्या है, ये राउंडेड है. ये क्या है, आ, काट. ये भी आ है, इसको भी आ बोलते, इसको भी आ बोलते. ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, और ये भी लॉन्ग है. ये दो जो है ये भी राउंडेड है. ये क्या है, खाट. ये क्या है, काट. आट. ये जो है शॉर्ट है, ये लॉन्ग है. ये शॉर्ट आ है, ये लॉन्ग आ है. राइट. सो नेक्स्ट क्या है, पुट ऊ. ये क्या है, बूट में लॉन्ग ऊ है, लॉन्ग ऊ है. ये क्या है, कप. ये कप जो है शॉर्ट आ है. जैसे आप ये क्या है, अबाउट. ये क्या है, कट. ये अबाउट. यहां पे देखिए, ये भी आ है. अब ये सब आ है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है. शॉर्ट, आप कंफ्यूज हो रहे. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कट है ये सिर्फ 25% अ बोलता. शॉर्ट आ बोल के नहीं बोले ऐसा. ओके, जस्ट नॉमिनल अ. 25%. ये जो है 50% आ है. समझने को, मैं इंटेंसिटी बोल रहा हूं उसकी. आ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, उसमें जो आ रहा, ये कप में, कप. वी आर स्वालोइंग. क्या कर रहे हैं हम लोग, निगल ले रहे. कप. ओके, कप, कट. ये जो है अंदर चले जा रहा. और अबाउट अ. ये जो है, ये आ है, अबाउट. यहाँ पे 50% जो है स्वेलो हो रहा, 50% ये हो रहा. फिर यहाँ पे क्या है, हर्ड. ये क्या है, हर्ड. ये जो है हर्ड, इसमें क्या है, 100% हो रहा है, हर्ड. और यहाँ पे जो है ये 75%. सो इसकी इंटेंसिटी बताना चाह रहा हूं.
यहाँ पे जो है 25% है खट, यू आर swallowing that। यहाँ पे 50, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे, तो इतना क्लियरली नहीं बताते आपको, सिंपल में उतना अगर से फोनेटिक्स आप डीप में पढ़ना चाहे तो 50 नहीं 100 सेशंस आर नॉट इनफ, बिकॉज इट इज अ साइंस। तो आपको शॉर्टेस्ट वे में बता रहा हूं, ये जो है अ 50% इतना ये प्रोड्यूस, ये सिंबल जो है दो यहाँ पे सिंबल्स है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट व्हाट मोनोथॉन्ग्स, प्योर वॉवेल्स। प्योर वॉवेल्स 12 प्योर वॉवेल्स के साउंड्स सिंबल्स कहाँ है, क्या है, क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे सीखें। यहाँ पे ऊ जो है ऊ ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न। सो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो ख ओ है क, और ये क्या है, ये जो 5 है, ये 5 जो है 5th 6th 7th 8th इसको राउंडेड बोलते हैं। कौन से वॉवेल्स बोलते हैं इसको, राउंडेड। नोट द पॉइंट, इफ यू हैव नोटबुक इफ यू हैव नोटबुक जस्ट राइट इट डाउन। ये जो 5 है उ, इसको राउंडेड बोलते हैं, राउंडेड वॉवेल जिसमें लिप्स राउंड होते। देखिए आप प्रोड्यूस करके देखिए, ऊ राउंडेड हुए, ऊ राउंडेड हुए, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस थिंग्स, आई एम हाईलाइटिंग दिस थिंग्स बिकॉज टेट में, टीआरटी में, डीएससी में, जेएल में, बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राउंडेड, ये 3 दे देकर इसमें से एक देते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनराउंडेड, ये बाकी के जो है पूरे अनराउंडेड है। ये 5 राउंडेड है, बाकी के पूरे अनराउंडेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट द पॉइंट। ओके, दीज थिंग्स आर राउंडेड एंड रिमेनिंग आर अनराउंडेड। अब इसमें और एक चीज भी रहती, लॉन्गर शॉर्टर, वीक स्ट्रांग बोलते हैं उसको। लॉन्गर मीन्स स्ट्रांग, शॉर्टर वीक। इसमें लॉन्गर शॉर्टर भी डिस्कस करें हम। ये ई है लॉन्गर है, ये ई है शॉर्टर है, ये ए है शॉर्टर है, ए है शॉर्टर है, आ लॉन्गर है, ये क्या है, आ लॉन्गर है, ऊ लॉन्गर है, आ। सो ये जो है 5 जो है लॉन्गर है, रिमेनिंग शॉर्टर है। कौन से लॉन्गर है, ये एक लॉन्गर है, ये एक जो जिसमें भी डॉट्स है वो पूरे लॉन्गर है, जिसमें भी डॉट्स है वो पूरे लॉन्गर है, 5 डॉट्स। जिसमें डॉट्स नहीं है वो शॉर्टर है। सिंपल, वेरी सिंपल। सो यहाँ पे मोनोथॉन्ग्स के ताल्लुक से, मोनोथॉन्ग्स और प्योर वॉवेल के ताल्लुक से हम लोग डिस्कस किए। ओके, इसमें लॉन्गर क्या है, शॉर्टर क्या है, राउंडेड क्या है, अनराउंडेड क्या है, किसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, और ये क्यों सीखना, ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो नॉर्मली ये एरिया से 100% क्वेश्चन आ रहे। टीआरटी में हाफ मीन्स इट विल चेंज योर लाइफ। So many aspirants are losing their job because of 0.2, 0.3 marks. 0.2, 0.3, 0.1 marks से जॉब जा रहा। So half mark makes a lot of difference in TRT exams. So that is what I am going to discuss in today's video. So इसमें half mark भी आपको आ गया, so you will get benefited. So यहाँ पे next क्या हो गया, मोनोथॉन्ग्स हो गया। इसमें क्या है, डिफ्थॉन्ग्स। डिफ्थॉन्ग का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्योर वॉवेल्स, 2 मोनोथॉन्ग्स। 2 मोनोथॉन्ग्स को मिलाए तो डिफ्थॉन्ग हो रहा। मोनोथॉन्ग बोले तो एक सिंगल वॉवेल साउंड, राइट। सो ये मोनोथॉन्ग कितने हैं, वी हैव 8 मोनोथॉन्ग्स। ए क्या है ये, ए पे ई, इसमें क्या आ रहा, ए आ रहा, ई आ रहा। जैसे कि ए और ई का कॉम्बिनेशन आ रहा, जैसे कि प्ले बोलते, इसको क्या बोलते हैं, प्ले। इसको कैसा लिखते हैं, हाउ डू वी राइट दिस सिंबल, ऐसे, ये पीएल है फिर ई आई है, प्ले। सो इसमें ये वर्टिकल बॉक्स में जो लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, जो ये डिक्शनरी है, इसके जरिए से हम निकालते। जैसे कि यहां पे है, if you observe it, तो यहां पे देखिए आप, यहां पे प्ले है, वर्ड क्या है, प्ले। So here we have the word. If you observe in this vertical box we have play. You may not see it clearly. If you have Oxford Advanced Learner Dictionary,
you go through it, you will find this kind of what phonetic symbols in those in Oxford Learner's Dictionary, and you can easily learn the pronunciation of the words. ओके आप लोग ये सिंबल सीख लिए तो वहां पे ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी में रेफर करते हुए असल एक्चुअली वो वर्ड को कैसा प्रोनाउंस किया जाता है. जैसे कि पूर है, POOR, पूर पूर बोलते, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? पुअर पुअर. दैट इज ही इज अ पुअर गाय, दे आर पुअर, उसको पुअर बोलते हैं. सो हाउ वी नो दैट प्रोनाउंसिएशन? थ्रू ऑब्जर्विंग ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी थ्रू द फोनेटिक सिंबल्स, राइट. सो ये जो है ए बोलता, प्ले में जो ए आ रहा ये है. नेक्स्ट क्या है? फ्लाई, आई, ये भी डिप्थोंग है, आई. ये क्या है? बॉय बॉय. ये क्या है? आई. इसको कैसा लिखते हैं? बॉय. बॉय नहीं होता है, ये आई है, ये बॉय. नेक्स्ट क्या है? गो, आओ आओ, गो. जो गो में आओ आ रहा ये है, देखो सा है ओ और आ मिलके आ रहा, राइट. ये क्या है? नाउ. इसमें क्या आ रहा? आ प्लस आओ आओ आओ. ये आ प्लस ऊ आ रहा, क्या आ रहा? आ प्लस ऊ, आओ. नेक्स्ट क्या है? नियर, इया इया. और ये क्या है? पुअर. जैसे हम लोग अभी पुअर के बारे में डिस्कस करिए, पुअर नहीं होता, ये ऊ आ है, ऊ आ. इसमें ऊ आ रहा, आ रहा, ये जो है आ है, तो 50% आ. ये क्या है? हेयर. हेयर नहीं होता है, हेयर हेयर. सो ये आठ जो है डिफ्थांग से जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स को जाहिर करते, डिफरेंट pronunciation को जाहिर करते. So here, so far we have discussed about monophthongs and diphthongs. So how many monophthongs are there? 12 monophthongs. How many diphthongs are there? 8 diphthongs. Okay, right? How many vowel sounds are there? 20 vowel sounds. How many consonant sounds are there? 24 consonant sounds. So ये सब चीजों को आप नोट कर लिए तो इसका okay, you will get at least half mark, I hope. So guys, that's it for today's video. Okay, we'll meet in our next video.